है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती 11 to 12 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। पेपर में आपको जो समय मिला था वो 2 घंटे का था और टोटल मार्क्स थे 120 और क्वेश्चन भी टोटल 120 ही थे। आपका पेपर 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस में 40 क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन थे, यानी 1 से 40 क्वेश्चन तक जीएस और 41 से 120 तक आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में हम जीएस के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। जीएस की वीडियो पहले से ही बनी है अलग से, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हैं इंग्लिश के। क्वेश्चन नंबर 41 से 65 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैसेज पढ़कर आपके क्वेश्चन के आंसर देने हैं 41 से 65 तक। तो चलिए पैसेज देखते हैं क्या है। पैसेज 1 है, स्पोर्ट्स एंड गेम प्ले अ मेजर रोल इन कीपिंग अ पर्सन फिट एंड फाइन। फर्दरमोर they increase the blood flow in the entire body, so this helps in keeping the heart in best condition. Moreover, the immunity of the body increases by playing outdoor sports. Also, it helps in keeping your body fat percentage low. This makes the appearance of the body better and makes a person good looking. Games like chess, card games increase the mental health of a person as they develop spontaneity and the response time of a person. As a result, a person's mind can make a decision under pressure. Thus, this helps in increasing the IQ of a person and presence of mind. यहाँ देखिए, आउटडोर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एंड हॉकी build the stamina of a person. As all these sports require a lot of running, the stamina of a person automatically increases. Therefore, a person can work for a longer period of time without getting tired. Some sports need individual participation while some require teamwork. Thus, sport develops teamwork in a person, which is essential in every field work. A company can only run by working together and not individually. So it becomes important for a person to know how to work together in a team. Only then you can achieve the desired goal. Sports can bring change to your day-to-day routine. Moreover, it can relieve you from stress as your body will experience a change. It gives your mind a boost of enthusiasm and happiness. As a result, this will fill you with energy for the next day. अब यहाँ क्वेश्चन शुरू है आपके। क्वेश्चन नंबर 41, तो पैसेज आपने सुन लिया होगा। हाउ कैन प्लेइंग बास्केटबॉल इंक्रीज द स्टेमिना ऑफ अ पर्सन। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, द प्लेयर रन्स अलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, स्पोर्ट मेक्स अ पर्सन लुक बेटर बिकॉज इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज द बॉडी लूजेज फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टीम वर्क मीन्स। 43 का होगा ऑप्शन बी, वर्किंग टुगेदर एज अ टीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच गेम हेल्प टू इम्प्रूव IQ। 44 का होगा ऑप्शन बी, चेस एंड कार्ड गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, पिक द वर्ड दैट इज द अपोजिट ऑफ स्ट्रेस। 45 का होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ दूसरा पैसेज दिया है, पैसेज 2, जस्ट एज यू कैन ruin the stomach and impair the whole body by taking too much nourishment, so you can overfill and cook the mind by feeding it too much. The more you read, the fewer are the traces left by what you have read. The mind becomes like a tablet crossed over with writing. There is no time for ruminating, and no other way can you assimilate what you have read. If you read on and on without setting your
own thoughts to work. What you have read cannot strike root and is generally lost. It is in fact just the same with mental as with bodily food. Hardly the fifth part of what one takes is assimilated. The rest passes out in evaporation, respiration and the like. क्वेश्चन नंबर 46 है another word for impair is 46 का होगा ऑप्शन ए obstruct. नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 when you read too much the mind cannot. 47 का होगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 3/4 पार्ट ऑफ आवर इनपुट इज. 48 का होगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 रूमिनेट मीन्स द सेम एज. 49 का होगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रीडिंग टू मच विदाउट सेटिंग वंस थॉट्स टू वर्क रिजल्ट्स इन. 50 का होगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तीसरा पैसेज है डिसिप्लिन इज ऑफ द utmost importance in student life. If the young students do not obey their superiors and go without discipline, they will be deprived of much of the training they should have at this period, and in future they will never be able to extract obedience from others in the society. Society will never accept them as persons fit for commanding and taking up any responsible positions in life. So it is the duty of all students observe discipline in the preparatory stage of their life. A college without discipline can never impart suitable education to students. The role of discipline in the playground and the battlefield as well plays a very important role. A team without discipline may not fare well in spite of good players for want of mutual understanding and cooperation. In any army, everyone from the rank of the general down to the ranks of an ordinary soldier must observe discipline. In case a soldier does not obey his immediate superior, the army becomes a rebel quite unfit for the achievement of the common ends of war. At first sight, it may appear to us that discipline takes away individual liberty, but on analysis, it is found that it does not do so, for liberty is not license. We find discipline, liberty at the root of all kinds of human happiness. तो क्वेश्चन है इसका 51 another word for rebel is. 51 का होगा ऑप्शन ई none of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 the word extract in passage means. आंसर होगा ऑप्शन ए गेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 व्हाट कैन अ कॉलेज विद डिसिप्लिन गिव टू स्टूडेंट्स. 53 का होगा ऑप्शन सी सुटेबल एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 चूज द प्रीपैरेटरी स्टेज ऑफ लाइफ. 54 का होगा ऑप्शन ए कॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस इन द पैसेज मीन्स. 55 का होगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पैसेज है इट इज विद मच सेटिस्फैक्शन दैट आई हियर दिस ग्रेट सिटी इंक्वायरिंग डे बाई डे आफ्टर these my papers and receiving my morning lectures with a becoming seriousness and attention. My publisher tells me that there are already 3,000 of them distributed every day, so that if I allow 20 readers to every paper, which I look upon as a modest computation, I may reckon about 3,000 disciples in London and Westminster, who I hope will take care to distinguish themselves from the thoughtless herd of their ignorant and inattentive brethren. Since I have raised to myself so great an audience, I shall spare no pains to make their instruction agreeable and their
Diversion useful, for which reasons I shall endeavour to enliven morality with wit and to temper wit with morality, that my readers may, if possible, both ways find their account in the speculation of the day, and to the end that their virtue and discretion may not be short, transient, intermitting starts of thought. I have resolved to refresh their memories from day to day, till I have recovered them out of that desperate state of vice and folly into which the age is fallen. The mind that lies fallow for a single day sprouts up in foliage that are only to be killed by a constant and assiduous culture. It was said of Socrates that he brought philosophy down from heaven to inhabit among men, and I shall be ambitious to have it said of me that I have brought philosophy out of closest and libraries, schools, and colleges to dwell in clubs and assemblies, at tea tables, and in coffee houses. क्वेश्चन नंबर 56 है, द ऑब्जर्वेशन बिकमिंग सीरियसनेस हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स. 56 का होगा ऑप्शन बी, प्रोफाउंड थॉटफुलनेस विद कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, द phraseology this great city has which one of the following cities under reference. 57 का होगा ऑप्शन सी, लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, what does the observation to enliven morality with wit and to temper wit with morality mean. 58 का होगा ऑप्शन ए, सिंपल एट रीजनेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, द माइंड दैट लाइज फॉलो हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स. 59 का है ऑप्शन ए, डिकेडेंट थॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज आई हैव ब्रॉट फिलॉसफी आउट ऑफ क्लोजेस्ट. 60 का होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव. अगला क्वेश्चन है क्या पैसेज है, पैसेज के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर. One would think that the larger the company is in which we are engaged, the greater variety of thoughts and subjects would be started in discourse, but instead of this we find that conversation is never so much straitened and confined as in numerous assemblies. When a multitude meet together on any subject of discourse, their debates are taken up chiefly with forms and general positions. Nay, if we come into a more contracted assembly of men and women, the talk generally runs upon the weather, fashions, news, and the like public topics. In proportion as conversation gets into clubs and knots of friends, it descends into particulars and grows more free and communicative. But the most open, instructive, and unreserved discourse is that which passes between two persons who are familiar and intimate friends. On these occasions a man gives alludes to every passion and every thought that is uppermost, discovers his most retired opinions of persons and things, tries the beauty and strength of his sentiments, and exposes his whole soul to the examination of his friend. क्वेश्चन है 61, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल कन्वर्सेशन. 61 का होगा ऑप्शन सी, टू इंटीमेट फ्रेंड्स आर टॉकिंग टू ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, व्हाट डज द वर्ड डिस्कोर्स मीन. 62 का होगा ऑप्शन ए, ऑर्डरली एक्सप्रेशन ऑफ थॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द वर्ड कम्युनिकेटिव हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स. 63 का है ऑप्शन बी,
स्पीकर स्पीक्स एंड द लिसनर्स लिसन्स एंड अंडरस्टैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, व्हाट डज द ऑथर मीन। 64 का होगा ऑप्शन बी, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर एंड कमिटेड टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, इन हैविंग रिटन सच अ पीसेज ऑफ यसे व्हाट मे बी द इंटेंशन ऑफ द ऑथर। 65 का होगा ऑप्शन ए, टू फाइंड एन इजी एंड प्रिसाइज स्टाइल विच कुड बी रीड एंड अंडरस्टूड बाय द ऑर्डिनरी पब्लिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 से और 75 तक आपको सेंटेंस में एरर ढूंढना है। अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन नहीं चूज करना है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है। फिर नो मैटर व्हाट, एक मिनट में आंसर इसका पता चलूँगी। 66 का पहला सही है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 67। 67 का जो है ऑप्शन ई सही है, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई एरर नहीं है। 68 का है, इसका है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी एक से ज़्यादा एरर है। 69 का है, दिस रॉन्ग मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट यू। 69 का होगा ऑप्शन ए, इसमें एरर है। 70 है, व्हाट काइंड्स ऑफ कार डू यू वांट। 70 का ऑप्शन ए सही होगा, इसमें होगा एरर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 का है ऑप्शन बी, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। 72 का है ऑप्शन बी, यानी इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। 73 का होगा ऑप्शन सी, आर फॉर सेल, इसमें एरर है। 74 है, द फैमिली हैज़ बीन लिविंग देयर सिंस मेनी ईयर्स। 74 का होगा ऑप्शन सी, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, बाय द टाइम वी रीच्ड देयर सी लेफ्ट। 75 में है ऑप्शन सी, इसमें एरर है। क्वेश्चन नंबर 76 टू 78, पिक आउट द सेंटेंस दैट इज अ चेंज ऑफ वॉइस। तो 76 का है, हैज़ द लाइब्रेरियन ऑर्डर द बुक्स। 76 का होगा ऑप्शन ए, हैव द बुक्स बीन ऑर्डर्ड बाय द लाइब्रेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय देम इन टाइम। 77 का होगा ऑप्शन बी, दे फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, जिसमें भी वॉइस चेंज हुआ है उसको पिक करना है। 78 का होगा 78 है, ही सेंट देम सम मनी। 78 का होगा ऑप्शन ए, सम मनी वाज सेंट टू देम बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो जो यहाँ जिन वर्ड को है ऑर्डर में लगाना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिज ग्रैंड मदर नेवर गोज स्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, माई फ्रेंड स्टैब्ड मी इन द बैक बाई स्टीलिंग माई क्लास नोट्स। स्टैब्ड मी इन द बैक इज एन इंस्टेंस ऑफ। तो 80 का होगा ऑप्शन ए, एन इडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 टू 83, पिक आउट द नेम्ड पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम द सेंटेंसेज। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, द केक वॉज डिलीवर्ड इन टाइम एंड वॉज डिलीशियस। तो 81 का होगा ऑप्शन ए, डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, द पपी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड व्हाइट बी वर लुकिंग बिहाइंड ऑल द डोर्स। प्रीपोजिशन बताना है। तो 82 का होगा यहाँ ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, सिंस द पुलिस हैड टू मूव स्विफ्टली इट वाज डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग एक्सटेंसिवली। एडवर्ब यहाँ 83 का होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ है डायरेक्शन दिया है 84 टू 89, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, एज द टीचर वाज नॉट डॉट डॉट विद द आंसर्स सी डॉट डॉट द लेसन्स टुमारो। 84 का होगा ऑप्शन बी, सेटिस्फाइड विल रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, दिस इज डॉट डॉट स्कूल बट द हॉकी ग्राउंड इज नॉट डॉट डॉट। 85 का होगा ऑप्शन ए, आवर और आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू
9 AM। 86 का होगा ऑप्शन सी, सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, सी इज द गर्ल इन द क्लास, नॉट गर्ल इज सी इज। 87 का होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, द मूवी वाज बोरिंग। 88 का होगा ऑप्शन सी, क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 89, इज देयर पोस्ट ऑफिस अराउंड हियर, आई नीड टू बाई स्टैम्प्स। 89 का होगा ऑप्शन ए, ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट मीन्स द सेम एज द वन गिवन बिलो, ही यूजुअली बाइज द टिकट्स। 90 का होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, लेट bygones be cannot undo the past. The above sentence has which one of the following grammatical classes? 91 का होगा ऑप्शन ए, participle and adjective। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, I found my friend who recognized me at once. The above sentence is an example of which one of the following grammatical classes? 92 का होगा ऑप्शन बी, कंटिन्यूटिव हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, आई एम्प्लॉयड द मैन हु केम यस्टरडे। द अबव सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज? 93 का होगा ऑप्शन ए, रिलेटिव प्रोनाउन इन ऑक्यूजेटिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ बैंडिट। 94 का होगा ऑप्शन ए, बैंडिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। द अबव सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज? 95 का होगा ऑप्शन ए, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। द पैसिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस शैल बी। 96 का होगा ऑप्शन सी, someone has cut the telegraph wires। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, he is an almost a drunkard, which of the following would be the correct form of the above sentence? 97 का होगा ऑप्शन बी, he is almost a drunkard। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, the bird flew exactly over the sleeper's head, which one of the following explanations is correct for the above sentence? 98 का होगा ऑप्शन ए, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ प्रीपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 99 है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज एवर बीन प्रिंटेड। द करेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस इज। 99 का होगा ऑप्शन ए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव एवर बीन प्रिंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विद हाई पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वन सब्स्टिट्यूट फॉर द अबव। 100 का होगा ऑप्शन बी, सिनेक्योर। क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक आपको पैसेज को रीड करना है और इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके सही वर्ड को फिल करना है। तो पैसेज वाइल सर्टेन 101 का यहाँ होगा, 100 का यहाँ बी होगा, डिसअप्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 102 2 का होगा ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्शन। 103 का होगा, वहाँ पैसेज देख लीजिएगा वीडियो रोक के। 103 का होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 104 का होगा ऑप्शन ए, प्रेज। 105 का होगा ऑप्शन बी, लुक। 106 का होगा ऑप्शन बी, लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 107 का होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। 108 का होगा ऑप्शन ए, यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा 109, यहाँ इसका होगा बी, इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 110 का होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ दी अबव। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। बी, लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट आवर sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell of saddest thought. Which one of the following best expresses the paraphrase of the above? 111 का होगा ऑप्शन सी, लाइफ हैज बोथ जॉयज एंड सारोज अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल
piety. Which one of the following is the best paraphrase of the above? 112 का होगा ऑप्शन ए, द सोल इज इमॉर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ रीडर सेल्डम परसूज अ बुक विद प्लेजर टिल ही नोज वेदर द राइटर ऑफ इट बी अ ब्लैक और फेयर मैन ऑफ अ माइल्ड और choleric disposition, married or a bachelor, with other particulars of the like nature that conduce very much to the right understanding of an author. Which one of the following is a suitable heading for the above? 113 का होगा ऑप्शन ए, मिस्टर ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। इसको पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है। 114 का होगा ऑप्शन सी, ऑथर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 115 है, इसका होगा ऑप्शन सी, टू एन्जॉय गुड हेल्थ वी शुड बी ईट मॉडरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। चैरिटी बिगिंस एट होम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द एबव? 116 का होगा ऑप्शन ए, हैविंग लुक्ड आफ्टर वंस किड्स एंड किन वन कैन प्रोसीड टू हेल्प अदर्स। क्वेश्चन नंबर 117 है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड रिगार्डलेस ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। of friends to which one of the following categories the above essay would belong? 118 का होगा ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। इसका होगा 119 का आंसर ऑप्शन सी, एक्सपोजिटरी। इसको पढ़ लीजिए आप, दिया गया है। 120 का होगा ऑप्शन, इसका आंसर होगा 120 का ऑप्शन ए, ऑनर एंड सेम डू नॉट डिपेंड ऑन अ मैन्स पोजिशन इन द वर्ल्ड बट ऑन व्हाट ही इज एंड व्हाट ही डज। तो 80 क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद इसी के आधार पर आप तैयारी करिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।